Ratna of Bharat. That is how I would describe Rajiv Malhotra, but not the Sarkari Ratna variety. And I'm very glad the government has not given him any Padma Award or Bharat Ratna Award because, I mean, if there were only people like Kapilji in that category, I would be happy. But I would hate to see him put in the same category as Nehru, Indira, Gandhi, Sharad Pawar, or Mulayam Singh Yadav. Modern day academics undertake research, whether in social science or in pure sciences, on subjects for which research funds are available. That is how the West has learned to control research globally. Ford Foundation brings in that many $1 million और उसमें पिगरी एंड विमेन पे रिसर्च करा लो, सब आ जाएंगे करने, कुछ भी करवा लो. हाउ टू स्पिट ऑन योर मदर्स फेस पावरफुली, इसी पे रिसर्च करा लो. इफ यू हैव $100 million, they'll all do it. But Rajiv chooses the topics of his research based on his passionate desire to defend the culture, civilization, dharmic, and knowledge traditions of Bharat from malicious attacks by Abrahamics, whose proven agenda is to destroy whatever little remains of Hindu civilization. And the best is, he organizes his own funds, and the government, of course, doesn't think him funding worthy. Well, that really is a compliment to you, Rajiv, because the Sarkari academics that the government is producing are loathsome. Mostly, we've really not produced the kind of people today India needs. And like a true intellectual Kshatriya, Rajiv has been providing solid ammunition and weaponry to a whole generation of Indians while personally training budding scholars to keep the battle going till it is won. And I am convinced that Rajiv could do it because A, he studied physics, not history, no social science. He wasn't a JNU Romila Thapar student. And if science is well taught, especially physics, it teaches you precise thinking. And Rajiv has always been razor sharp. Also, that he went on to become a very successful first generation entrepreneur in the IT sector. And that confidence that he could come out triumphant among the best globally obviously adds to his self-confidence. And his fortune, the fortune that he made as an entrepreneur, did not depend on any godfather or political patronage. So it's not Adani, Ambani type of fortune. It's based, as I said, without godfathers. And I believe he has inherited from his mother, who I've heard a lot about, not so much, I haven't heard so much about his father, but from his parents, high degree of self-respect, self-esteem, and supreme confidence in his ability to work hard with meticulous planning. I don't know many people who work as hard as he does every minute of the day, every day. And the planning is truly awesome, awe-inspiring. Rajiv doesn't just write books. He makes sure that they are read and taken note of, and they bring about a paradigm shift, even if the government of the day today doesn't listen, because it's deaf and dumb to good sense. But he's made sure that a whole generation of young people, and including his own generation, have started clearing the fog from their minds and thinking afresh. And most importantly, Rajiv knows which battles are worth picking and those that are not. And I think that really distinguishes him from many others who will just pick up any battle with equal ferocity, but not understand the hierarchy of importance that issues need. Most of Rajiv's books are Mahagranths, based on pioneering research. Their size and scholarship intimidates many, but I'm glad Rajiv has designed Jatis, Varnas, and castes as a primer and a valuable toolkit.
But it's very different from the devious toolkits peddled by Western agencies and political parties in order to unleash fake narratives to destroy their opponents. But Rajiv's toolkit is in defense of our much wounded civilization and maliciously maligned dharma. Since it's only about 130 odd pages long, even those not given to reading serious fat books are likely to find in it a powerful weapon against fake narrative peddlers. But the book is not just for beginners. Even those of us like Kapil ji, Bajaj ji, or myself who have been aware of how Jati and Varna have been caricatured and distorted beyond recognition by Christians and Islamists in order to, whether it's point one, all those, what was the term you were using? 1 point, oh, 2.0, 3 points. Yeah, that's right. But basically, all these are products of Abrahamic thinking. They come under different isms, under different labels, but the mindset is the same predatory, abusive mindset. And I often wonder how such evil can thrive so much in the world. How do they manage as civilizations to be so evil and get away with it? And their agenda has been clear: to break down and atomize Hindu society, to open doors for conversions. And all of us, even though we know all this, will find this book very useful because it brings together in a succinct form vital facts and historical insights from a large number of original sources such as the Vedas, Itihas Granths, as well as scholarly studies on this subject. And I urge all of you not only to buy a copy for yourself, but please gift it to as many people as you can, which I certainly will do within my own circle. While I felt elated reading this book, on the other hand, it also made me very sad because it illustrates how easily even our tallest social reformers and leaders of the freedom movement fell into the intellectual traps laid by colonial administrators and Christian missionaries. Both these sinister groups used elaborate justifications for their exploitative and ruinous presence in India as colonizers. We were told that the British were here on a civilizing mission, just like the Islamists, the invaders claiming to be Allah's army, claimed that they had come to rid us of evil practices such as Murti Puja and the divisive Varna or Jati-based social organization. Now, it's interesting that both Islam and Christianity targeted Hindu faith, traditions, culture, civilization using women and Varna Jati Vyavastha. Women in order to destroy a family system, which is the founding rock of any civilized society, and Jati Vyavastha because on it is built the entire superstructure and a very delicate social fabric in which diverse groups could coexist in mutually interdependent manner. On both these fronts, 19th century social reformers, as well as the tallest among freedom movement leaders, adopted the fake narratives constructed by colonial rulers and the conversion mafias to launch reform movements precisely around those issues which our enemies put on our table. In fact, my starting point of my research as a student of history, social reform movements in history, was precisely this. Way back in 1970s or late 1970s, when I was a student of JNU, I was quite taken aback by how each of the issues that the colonial administrators or the missionaries put before the Hindu society to attack us, to demonize us, each one of those issues were taken up for reform without critically examining whether there was enough worth in those. And those who were critiquing us, around women's rights, for example, जिस देश में और जिस कल्चर में फेमिनिन को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है,
और नॉलेज की देवी, वेल्थ की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा माँ, उनको भाषण देने आते हैं जो लोग सोचते हैं स्त्रियां तो फालतू हड्डी हैं। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्या है? A woman is the spare rib of Adam and created only for his entertainment because he felt sort of bored in paradise. So चलो ईव भी बना दी और उसकी फालतू हड्डी से। ये फालतू हड्डियाँ हमें सिखाने आई हैं कि हमारे राइट्स क्या होने चाहिए और हमें अपने को कैसे असर्ट करना है। They made the social reformers made the enemy agenda their own. A few like Lokmanya Tilak resisted this nefarious game by arguing that social reform ought to be decided by the concerned communities, not by tyrannical colonial rulers, but they were sidelined as Hindu conservatives by the so-called progressives within social reform movements and the freedom movement. In a land where women had composed Vedic hymns thousands of years ago, where feminine is revered as Shakti incarnate, in a land where two of the foundational texts of Hindu Dharma and many others, namely Ramayana and Mahabharata, were written by so-called low caste rishis. We never called them low. We never actually, that's not our vocabulary. हमने किसी को दलित नहीं कहा, हमने किसी को पिछड़ा नहीं कहा। 300 साल पहले भी कहाँ कोई किसी को कहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु आर पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड कास्ट, एक भी हाथ नहीं उठता। यह हमारी कैटेगरीज थी नहीं, पर आज उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। और इसी देश में हमारे मैकॉलाइट elite actually came to believe that it was the British who, for the first time in history, enabled women and the so-called low castes to get education. इससे पहले कभी थी नहीं, even though there is profuse evidence to the contrary. Rajiv has very ably and succinctly put together information from British records themselves to show how devious administrative devices, altogether alien identity markers like caste, were invented in order to facilitate the fragmentation of Indian society by creating imaginary fault lines to begin with and attributing them to Vedas and Shastras. And sadly enough, those imaginary fault lines have become real fault lines, so much so that we are witnessing low-intensity civil war in India on a daily basis. And thereafter, as we know, कास्ट के बाद बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, टीबीसी, सीबीसी, अब तो लिस्ट एंडलेस होती जा रही है। और शायद बजाज जी ने कुछ और भी, सरकार ने एक बनाई थी बैकवर्ड कास्ट की, और कैटेगरीज बनाओ और उसमें कोटा विद इन कोटा बढ़ाओ वगैरह वगैरह। आई मीन थिंक ऑफ इट, टुडे 80 to 90% of our population falls in one or the other backward category. And the politicians and governments have attributed it all to the imaginary pathologies and evils of Hindu society from the time of Vedas. No one pauses to check out if India was indeed so filled with backwards and oppressed persons before the advent of Islam and Christianity, which allegedly brought ideas of egalitarianism to India. How the hell was pre-Islamic India the wealthiest nation in the world, not just in terms of material wealth, but also knowledge traditions? The whole world came here to garner from us, to learn from us, to buy from us luxury products of the kind that were not available anywhere in the world. No one checks the gruesome and barbaric track record of Islam and Christianity, which have practiced slavery on epic scale, indulged in loot and plunder through inhuman means, caused genocide after genocide, wherever they set foot. Instead, we let them lecture us on equity, liberty, human rights, governance, and what have you. Isn't it bizarre? You know, today, 80-90% of our people are getting free food. Farmers are getting free 2 रुपए राशन, 1 रुपए का राशन। जिस देश के अन्नदाता को सरकार खिलाने लगेगी, तो फिर
खेती कौन करेगा? आप सोचिए। और जिनको आज हम बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, अगर उनकी गिनती की जाए कौन सी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं, फार्मर्स, उनको हमने बैकवर्ड कह दिया। जो जिनके प्रोडक्टिव स्किल्स के आधार पे इस देश में हर गांव में कहते थे 36 कलाओं से एक गांव बनता है, यानी फार्मर था जो 36 कलाओं को हर गांव में सपोर्ट करता था। उसमें आर्टिजन्स तरह तरह के, वीवर्स, सुनार, लोहार वगैरह वगैरह, 36 कलाओं की बात होती थी। आज आपको गांव से बिल्कुल अब लोग भाग चुके हैं। किसी में 2 पैसे की भी औकात है, वो किसी शहर में जाके पान बीड़ी की दुकान लगा लेगा, रिक्शा चला लेगा, चाय की ठेली लगा लेगा, फल सब्जी बेच लेगा। गांव में रहना, जिसको लगता है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, वो गांव छोड़ रहा है, खेती छोड़ रहा है। और हमारे स्किल्ड आर्टिजन, स्किल्ड वीवर्स, जिनके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड फेमस होते थे, पीसेस ऑफ आर्ट, बनारस की सिल्क साड़ी बनाने वाला, इक्कट बनाने वाला उड़ीसा का, हमारे लोहार, सुनार, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर पीसेस ऑफ आर्ट। और वो छोड़ के आज आप देखेंगे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी साइट्स पे, नरेगा की साइट पे पत्थर तोड़ रहा है। ये हाल हमने कर दिया है। और हमने सारे प्रोडक्टिव कास्ट और क्लासेस, जातीज को बैकवर्ड करार कर दिया। इससे बड़ा अपने मुंह पे बड़ा तमाचा और मूर्खता हो क्या सकती है, मुझे समझ नहीं आता। और हम सोच रहे हैं ये सोशल जस्टिस हो रहा है, और उनको कोटा देके, कोटा क्या, आप किसान के बेटे को उसकी सारी कलाओं से अलग करके, सारे स्किल्स, एक किसान के पास कितने स्किल्स होते हैं, सॉइल नॉलेज, बीजों की, बॉटनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, क्या क्या नहीं है। और उसकी सारी स्किल्स हटा के आप कहते हैं कि आओ पहले कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन करो, हम तुम्हें पहले लफंगा बनाएंगे, 10-12 साल में कुछ नहीं आएगा, तुम्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आएगा, फिर हम तुमको 3-4 महीने का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, पहले डी स्किल करो, फिर आप नौटंकी करो स्किल डेवलपमेंट की, और वो भी रैकेटियरिंग के साथ। एंड सो टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट army of lumpenized unemployable youth. That is what Sarkarikaran of Indian education has done. That is what taking away people from their traditional occupations where they learn from their own families. संस्कार भी सीखते थे, स्किल्स भी सीखते थे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी। एक भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपको नहीं मिलेगी 300-400 साल पहले के कहीं लिटरेचर में। अब तो आर्मी की आर्मी भरी पड़ी है। तो ऐसा समाज, विश्व गुरु तो क्या, विश्व कुली बनने की बात जो कर रहे हैं बार बार राजीव, सही बात है, कुली बनने लायक ही हैं। और ये तो एजुकेटेड कुली की बात राजीव कर रहे हैं जो अमेरिका में है। यहाँ तो लिंग्विस्टिक क्रिपल्स, मैल एजुकेटेड, पोर्नोग्राफी लिप्त, ऐसे लुम्पनाइज यूथ कर रहे हैं। तो अब ये कास्ट के चलते आप देखिए गजब का खेल खेला गया। ब्राह्मण्स को अटैक किया कि ये टॉप ऑफ द हायरार्की हैं। हालांकि राजीव की किताब बहुत अच्छे से अनेकों सोर्सेज से बताती है कि ब्राह्मण्स वर नेवर, दे नेवर हैड पॉलिटिकल पावर, दे नेवर हैड इकोनॉमिक पावर, परंतु उनकी क्योंकि ज्ञान परंपराएं वो संजो के रखे थे बहुत सी, उस ज्ञान परंपराओं को तोड़ने के लिए ब्राह्मण को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि आज अगर मिलते भी हैं ब्राह्मण तो पूरी तरह डीरैसिनेटेड, जैसे राजीव बता रहे हैं अमेरिका में अब उन पे अटैक हो रहा है, उनको पता नहीं खुद को डिफेंड क्या करें। उनमें उन्होंने क्या क्या पाप किए उनको वो भी नहीं पता, और जो पाप नहीं किए पर उनके मत्थे मरे जा रहे हैं वो भी नहीं पता। और बिल्कुल आप बताइए, हमारे इंटेलेक्चुअल elite, जो शिखर पर intellectual elite, not political elite, not economic elite, they become mook witnesses to their demonization, and they're going to be attacks. In a way, Rajiv, it may be good
वापस आएंगे हिंदुस्तान से, यहाँ से सारे यंगडे टाइप भेजो, कांचा इलैया, वो दलितों को रन करने दो, इनकी इकोनॉमी सारी, बहुत अच्छा होगा, कोटा वालों को करने दो, और वापस आने दो इनको पिट के, जो डिरासिनेटेड हमारे ब्राह्मण, तो शायद पता चले कि आपके साथ अन्याय क्या हुआ। यहाँ से तमिलनाडु से निकाले गए तो कैलिफोर्निया चले गए, वहाँ भी अच्छा कर लिया, परंतु अब वहाँ से जब आएंगे तो उनको सच में सोचना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या क्या पाप हमने किए या नहीं किए, जिसकी वजह से हमें ये सज़ा मिल रही है। क्षत्रियों को पहले इस्लामियों ने डीमिलिटराइज किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, और वॉरियर स्पिरिट क्रश कर दी पूरी तरह से। आज आप देखिए, जो सर तन से जुदा की बात करते हैं कम्युनिटी, उसके पूरी तरह से हथियार लैस हैं। हमारे घरों के बच्चे एक किचन नाइफ के अलावा उनको कॉकरोच मारना नहीं आता, किचन नाइफ के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करना आता। अगर कोई अटैक होता है आपके घर की स्त्री पर, आपकी बहन पे, बेटी पे, तो पौरुष विहीन पुरुष जो हमने पैदा कर दिए हैं, उसी की वजह है कि हमारी घर की बहन बेटियां वूम जिहाद का शिकार हो रही हैं। उनको लगता है वो मर्द तो है ना, कम से कम चलो बुर्के में रखेंगे, पर हमारे ऊपर कोई आंख उठा के तो नहीं देख सकेगा। इस तरह की वो बातें बताते हैं इस्लामी कि तुम्हारे मर्द तो बिल्कुल देखो कितने नपुंसक है, एंड इट्स अ फैक्ट। वो जिम में जाके 6 पैक्स बना लेंगे, पर फूंक उड़ाओ तो उड़ जाएंगे। मैं भी फूंक उड़ाऊँ या 2 झापड़ मारूं तो जिम ट्रेंड जो मस्कुलर होते हैं हमारे सींकियां पहलवान, दैट्स व्हाट वी हैव डन टू द यंग पीपल। हर गांव में अखाड़े होते थे, और आज के दिन एज ए सेड हमारे घरों के बच्चे चूहिया देख के, कॉकरोच देख के डर जाते हैं। नहीं उसको मैं खुद भी तो वैश्य जो बोला, बनिया एक्सप्लॉइटेटिव है। आपने देखा बॉलीवुड में पोंगा पंडित है ब्राह्मण, जो क्षत्रिय है वो राजपूत लैंडलॉर्ड, इतना एक्सप्लॉइटेटिव है। बनिया है, सूदगोर है, कितना गलत तरीके से पैसा कमाता है। और शूद्र, पहले तो उनको इकोनॉमिकली डेवस्टेट किया इस्लामी आक्रांताओं ने भी और अंग्रेज़ों ने भी, और फिर इतना बदहाल छोड़ दिया कि दे बिकम अशेम्ड ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस। जिनको हम शूद्र कहते हैं, एज आई सेड, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव क्लासेस, and the fact that each one of these jatis considered their avocation, their work sacred is evident from the fact कि एक मोची भी अपने दिन का काम शुरू करता है अपने औजार की पूजा से। चाहे लोहार है, चाहे सुनार है, कोई भी, और वीवर भी अपने दिन की खड्डी शुरू करेगा तो पूजा से करता है, बिकॉज दैट इज अ सेक्रेड एवोकेशन। बट आप बताइए कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या सेक्रेड रह गया? और बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में इनको डाल के मीनियल बना के कोटा दे दिया, चपड़ासीगिरी कर लो, क्लार्कगिरी कर दो, स्किललेस, कंप्लीटली स्किललेस। एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कन्वर्जन माफियाज का सबसे बड़ा अगर कोई टारगेट रहा है तो ये तथाकथित शूद्र या आर्टिजनल ग्रुप्स, स्किल्ड ग्रुप्स, हस्तकला से जो ज्ञान परंपराओं रखते थे। आज आपको अच्छा टेलर चाहिए, आपको अच्छा प्लम्बर चाहिए, आपको अच्छा जरी का काम करने वाला चाहिए, कुछ भी अच्छा मेसन चाहिए, तो आपको हिंदू बच्चे वो चपड़ासीगिरी करते दिखेंगे, परंतु इन कामों में जाना ही नहीं कोई चाहता। हमने उनको इतना शर्मनाक बना दिया उनके लिए। नाउ Rajiv has dealt with this weaponization of the term Shudra very brilliantly, but I would like to add a little bit to it, because the gross misrepresentation of this metaphor, of this term, based on 2 verses in the Purusha Sukta of the Rig Veda, has caused Hindu society endless grief. In this sukta, the body is used as a metaphor to describe the 4 varnas. Brahmins are the head or the mouth of the cosmic Purusha. Kshatriyas sprang out of the arms, Vaishyas from the thighs, and Shudras from the feet. अब मेटाफर है, therefore
इनके हिसाब से इस्लामी और क्रिश्चियंस हम पे अटैक करते हैं। शूद्रा मतलब इतने लोली थे, तुमने उनको बॉटम रैंक में रख दिया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। बट हमारा एज अगेन राजीव demonstrates this with enormous collection of very astute collection of facts very succinctly that हमारी सोसाइटी कभी भी vertically organized नहीं थी. Like the Christian society, the chain of being, God at the top, then the king, and below him the ruler, and below him etc etc. इतना वाहियात नोशन है. और वेदांत इंस्पायर्ड जो इक्वालिटी है वो तो सिर्फ स्पिरिचुअल डोमेन नहीं, बट ऑल आर जातीज, मोस्ट ऑफ आर जातीज वर हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड, और हर जाति सेल्फ गवर्निंग यूनिट हुआ करती थी. और कार्ल मार्क्स जैसा फुअड़ भी वहाँ लंदन में बैठ के उसको समझ आ गई थी दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स, where each village managed its own affairs, and within each village, each jati, no matter what its positioning, what its occupation, managed its own internal affairs by itself. और ये जो पाँव की बात करते हैं, इतनी फुहड़ बात लगती है मुझे. I'll conclude very soon. पाँव ये सोचते हैं लोली है. अब पाँव पे तो मेरा सारा शरीर खड़ा है, काट दीजिए सिर भी नहीं काम करेगा. I'm rendered, I have no balance. The body has no balance if I can't stand erect and be firm on my feet. दूसरा, आप देखिए, हम किसी को इज्जत मान देते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसका माथा जाके नहीं स्पर्श करते. बड़े लोग बच्चों के माथे को चूम लेंगे, परंतु जाके किसी का माथा नहीं स्पर्श करते. आप चरण स्पर्श करते हैं, हम चरणामृत पीते हैं. And all this, I think, is so important to understand this, not just the metaphorical importance of feet on which the entire body stands firm, without which it cannot actually even be mobile. परंतु मुझे याद है मेरे 3 फ्रैक्चर्स हुए पिछले 2-3 सालों में, पाँव में ही. और एक ही सलाह मुझे मेरे डॉक्टर देते थे कि प्लास्टर भी है पर उंगलियां हिलाते रहो कम से कम पाँव की. पाँव में हरकत होनी चाहिए तो ब्रेन तक पहुंचेंगे सिग्नल्स. तो लेट के भी किसी न किसी तरह से जो हिस्सा आपके पाँव का या टांग का चल सकता है चलाते रहो. अदरवाइज you will become, you will have serious problems when you are through with your plaster. Now, the point I would like to conclude with is the following. जाति और एंडोगमी, राजीव, यू हैव रेज्ड दीज इश्यूज कि हम एंडोगमिस भी थे और वरना से जाति हुई, वो ऑसिफिकेशन का था. पर मुझे लगता है कि जाति की बहुत फ़ायदे भी हैं. मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम पंजाबी रेफ्यूजी वहाँ से आए, हमारे कोई जाति बिरादरी बची नहीं, सब बिखर गए, टूट गए. जो भी जाति वेल निट है उसके साथ पंगा लेने में लोग डरते हैं, चाहे वो गुज्जर हों, चाहे वो चर्मकार हों, चाहे कोई भी हो. पुलिस भी उनकी बस्ती में जाके ज्यादती करने से, क्योंकि सारा समाज इकट्ठा हो जाता है. और आपको और हमको कोई आके पीट भी जाए तो जब तक हमारे सगे संबंधियों को पता चलेगा वो रो लेंगे, पर उनके पास कुछ करने को होगा नहीं. वेल निट जातीज आर द मोस्ट वाइटल source of support, whether they are because of ossification or not. And this jati solidarity and bonds have stood in the way of conversions. इसीलिए इस्लामियों को और क्रिश्चियंस को बहुत गुस्सा आता है हमारी जाति बॉन्डिंग से, जाति बॉन्डिंग से. और मुझे लगता है कि if anything has protected us, it's really this, even in its ossified form. और दूसरा, अपवर्ड मोबिलिटी का बहुत बड़ा अच्छा साधन है. आप जानते हैं अमेरिका में जाट हैं, पटेल हैं, अभी भी अपने गांव से लेके जाएंगे बिहाने के लिए लड़कियां, हिंदुस्तान से लेके जाएंगे पटेल नेटवर्क्स, जाट नेटवर्क्स, एंड लुक एट हाउ वेल दे परफॉर्म. और मारवाड़ीज, आई मीन लुक एट द काइंड ऑफ बिजनेस डील्स दे डू. ओरली करोड़ों का लेन देन हो जाता है अंगड़िया के बीच में, मारवाड़ियों के बीच में.
orally because of trust. If you betray that trust, you'll be out of the jati and biradri, and nobody wishes to be outcasted from that. And also ensure endogamy ensures much greater stability of family life and marriage. आप देखिए जो एंडोगमी नहीं प्रैक्टिस करते, जिससे भी मर्जी शादी कर लेते हैं, सेल्फ चॉइस वाली, कभी इससे कभी उससे, क्या हाल है उन शादियों का। यहाँ स्टेबल मैरिजेस रहती है, इससे भी इनको बहुत तकलीफ है। और डाइवोर्स रेट बढ़े, दैट इज सीन एज साइन ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, कि शादियाँ टूट रही हैं। ये मैंने फेमिनिस्ट को बहुत कहते सुना कि आपके यहाँ बहुत लो डाइवोर्स रेट है, तो ये उनको इस बात पे दुख होता है कि हमारी शादियाँ ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे। और दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। राजीव, आज हिंदू सोसाइटी अगर टूट रही है, वो बड़ा कारण है कि हमारे पास जो इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स थे, जाति पंचायत, बिरादरी पंचायत, वो ख़त्म हो गए हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी की पावर का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो सब अंदर झगड़े अपने सुलझा लेते हैं, और उनके यहाँ डाइवोर्स है या खुला है, जो भी करना है फटाफट बिना पैसा खर्च किए 2000 रुपए में मौलवी कुछ भी कर देता है, अंदर ही होते हैं। और हमने जब से कोर्ट कचहरियों और कानूनों का सहारा लेना सीखा है, भाई भाई पहुंच रहा है, आपस में परिवार में झगड़े नहीं सुलझाने, नेबरहुड में नहीं सुलझाने, बिरादरी में नहीं सुलझाने, बस कोर्ट में जाएंगे। तो ये, और एक्सेस टू पावर थ्रू ग्रुप मोबिलिटी। फाइनली, जस्ट क्विकली आई रिमेंबर, आप ये बात कर रहे थे IITs की, 3-4 साल पहले शायद आपने पढ़ा होगा राजीव, मैंने 2-3 आर्टिकल्स लिखे थे IIT कानपुर पे, कितना बड़ा इन्होंने घातक हमला किया था। वहाँ 4 बहुत ही आउटस्टैंडिंग सो कॉल्ड अपर कास्ट, पॉसिबली ऑल ब्राह्मण प्रोफेसर्स वर टारगेटेड बाय दिस गाय कॉल्ड सदरला, PhD कैंडिडेट था, अपने को SC वगैरह वगैरह प्रेजेंट कर रहा था। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही वाज born to a Brahmin or a upper caste mother, but grandfather had converted to Christianity, और क्रिश्चियन माफिया पूरा उसके पीछे था। अब इसने बहुत बड़े पैमाने पे, उसकी PhD थीसिस में प्लेजरिज्म था। जब वो पहुंचा इवैल्यूएशन के लिए, तो आजकल तो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो पता चल गया कि 30-40% उसकी थीसिस PhD की ये है प्लेजराइज्ड। उसको बोला गया तो उसने तुरंत SC/ST एक्ट में जाके उन 4 प्रोफेसर्स के खिलाफ केस कर दिया। अब ये जान के इनके लाले पड़ रहे हैं, एंड their mothers came to me to say, कोई सुनने को तैयार नहीं। IIT डायरेक्टर भी डरा हुआ है कि मैंने अगर सपोर्ट कर दिया तो मेरे पे भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। Believe you me, these 4 families were in state of utter ruin. Imagine. And it's interesting, शायद उनमें से 4 के 4 या 4 में से 3 अमेरिका में से कुशी जॉब्स छोड़ के आए थे कि हम अपनी आल्मा मेटर में जाके, हम कानपुर में जाके, इंडिया में जाके सर्व करेंगे, हमें यहाँ अमेरिका में डॉलर्स नहीं कमाने, हमने देश की सेवा करनी, और ये हाल किया। और ये इस तरह के फॉल्स SC/ST एक्ट, इस पे किसी ने नहीं सोचा जब ये लागू हुआ। हम सोशल जस्टिस के नाम पे अपना गला खुद कटवाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे समाज के आगे चैलेंज है। हमने कानून बनाने कितने सालों से आउटसोर्स किए हुए हैं फॉरेन फंडेड NGOs को, तो उन्हीं का ये, वो पहले उन्होंने ये ग्राउंड टेस्ट और पूरी अच्छे तरह टेस्ट किया 2-3 डेकेड्स तक। ये सोए हुए हैं, मूर्ख हैं, इनके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर लो। बट आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू वेक अप, एंड थैंक यू राजीव फॉर द वर्क यू आर डूइंग। My sincere gratitude to you. Thank you. राजीव जी के साथ तो बहुत पुराना संबंध है, और राजीव जी ने जो काम एनलाइटनमेंट का करना है कि लोगों को जागृत हो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, वो बहुत अच्छी तरह किया है, कर दिया है, वो ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि जानने के बाद भी लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते। मैं
अब कास्ट है कि वो वर्ण है कि जाति है कि रेस है, एक बात कहूँगा कि वेस्ट हैज़ द हैबिट ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स गिल्ट टू पर्टिकुलरली हिंदूज। अगर वो जेनोसाइड, रेड इंडियंस मार दिए, मैक्सिकन मार दिए, ज्यूज मार दिए, तो गोधरा में के बाद अगर 800 मुसलमान मर गए तो हिंदू लोग जेनोसाइड करते हैं। उनके 17 मिलियन रेड इंडियन, 36 मिलियन मैक्सिकन और 5 मिलियन ज्यूज, वो गिल्ट जो है यहाँ आ गया, ट्रांसफर हो गया। ब्लैक के साथ रेसिज्म 1865 तक चेन्स में बांध के नीग्रोस को लाना, उनको साउथ अमेरिका में उनको कोड़े मार मार के। यू रिमेंबर अब्राहम लिंकन when he became president for the second time, the war was going on, civil war. He was asked, when will the war end? He said, till the amount of blood that the white man has shed of the black, till he sheds as much blood, this war shall not end, and I don't want it to end, because just are the ways of God. This was their racism. ये रेसिज्म जो है, अब वो गिल्ट जो है रेसिज्म का, वो भी हिंदुओं पे चेपना है। तो दलित जो हैं, जो शूद्र, जो कि हमारा एक वर्ण है, कास्ट नहीं है, वर्ण कलर होता है। और कलर में तो आप जैसे जब घर में पेंटिंग करानी होती है तो जो कलर का कार्ड आता है, यू कैन नॉट से वेयर येलो एंड्स एंड रेड बिगिंस। उसी तरह सामाजिक व्यवस्था में भी हमारे यहाँ ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कंटिन्यूम था, इसमें कोई आर्बिट्रेरी लाइंस नहीं थी। एनीवे, ये बातें कोई सब जानते हैं, इनमें नहीं जाऊंगा मैं। पॉइंट ये है कि करना क्या है। इंडिया हैज़ बिन ए sabotaged and a subverted state for 67 years up to 2013. It was a sabotaged state, subverted state. Government itself was a party to dividing the society, weakening the Indian army, Indian armed forces, and making particularly the majority community, the villain in everything. ये तो होता रहा। अब बदलाव आने में टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। ये जो सारी सिचुएशन भाई साहब ने एक्सप्लेन की है कि वो वोकिज्म के भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैनेडी स्कूल है, अब वो कॉमर्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कारपोरेट हाउसेस में वो एंटर करके जो इंडिया में कास्ट रिजर्वेशन है वो वहाँ की अमेरिकन इंडियन कंपनीज हैं उनमें भी लगाना चाहते हैं, और कास्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ा के करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे भी जो उनकी कंपनियां हैं उनमें भी कास्ट रिजर्वेशन हो, ताकि बाद में प्राइवेट इंडस्ट्री में कास्ट रिजर्वेशन आ जाए। यू सी, द होल एंटरप्राइज is directed at destroying the Hindu society. Particularly now, when India seems to be moving towards becoming a Hindu-centered country, so all these forces which are inimical, they are getting together. अब ट्रेजेडी उसमें जो है वो अभी क्लियर हो जाएगी। मैं इस सारे स्ट्रक्चर को करना क्या है, ये है क्या और करना क्या है, इसकी मशीनरी क्या है, सर नहीं बताई है, मैं गिना रहा हूं। ये एंटी हिंदू मशीनरी ये क्या है? इसमें पहला है कुछ यूनिवर्सिटियां, पहला एक मुल्क है यूएसए, सबसे बड़ा विलेन है यूएसए। रशिया में नहीं होता, यूरोपियन यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, जापान में नहीं होता, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, इवन इंग्लैंड में भी इतना नहीं होता, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में भी नहीं होता, यूएसए में ज्यादा होता, उतना नहीं है। यूएसए में ये जो सेंटर बना हुआ है, हार्वर्ड जो आपने कहा, वो सेंटर जो बना हुआ है,
प्योरली डिजाइंड फॉर एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, एंटी सबवर्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी। तो हमको ये एक तो पहले का आइडेंटिफाई कर लें एनिमीज कंट्री यूएसए। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं उसमें, उनको भी आइडेंटिफाई कर लें, लिस्ट कर लें। तीसरा, जो इंडियंस यहां से पढ़ के, हमारे पैसे से पढ़ के, आईआईटी में पढ़ के, मेडिकल कॉलेज में पढ़ के, वहां जाके डॉलर वॉश्ड एंड थेरी ग्लैमर्ड, है ना जी, डॉलर वॉश्ड एंड थेरी ग्लैमर्ड जो यहां से जाते हैं, दे सेल देमसेल्व्स, दे वर्क अगेंस्ट द कंट्री। उनको भी पूरी लिस्ट बनानी चाहिए हमको पहले। यू सी, वी शुड लिस्ट दोज पीपल। ये हमारे लोग जो जाते हैं वहाँ, जिन्होंने जाके ये काम करते हैं, और इन द नेम ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कि जी वो तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड। वी शुड सी देम एज एनिमीज। तो मशीनरी में पहले कंट्री, यूनिवर्सिटीज, इंडियंस ट्रेंड हेयर हु आर वर्किंग फॉर देम, एंड नंबर 4, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर फंडिंग देम। सर ने मुझे कल एक्सप्लेन किया कि उनको रोका इसलिए नहीं जाता कि वो इलेक्शन में पार्टियों को पैसा देते हैं, इलेक्शन जितवाते हैं। तो सम वे हैज़ टू बी फाउंड दैट, और कुछ ना करें, उनको एक एजेंडा दे दें कि आप पैसे दो, पर उनको कहो कि ये भी करें, ये भी उनका एजेंडा हो यूनिवर्सिटियों का। इस तरह बिगिनिंग करके उनको, इंडस्ट्रियलिस्ट नंबर 4 है। और देन ये जो सो ये 4 मेजर ग्रुप हैं, 4। अब इनको हमने, इनका करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक पार्ट है, ये पार्ट है, बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, लोग हैं। दूसरा, एंटी हिंदू फोर्सेस विद इन इंडिया जो कि उनके साथ कोऑपरेट करती हैं, उनमें द फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट आर एट द कोर, फॉलोड बाय द इवेंजलिस्ट convertors, followed by the leftists, maybe above, leftists are above them, they are everywhere. And Khalistan is a very weak movement. Khalistan, I will not consider Khalistanis, because if you read Punjabi newspapers, Punjabi magazines, or other thing, you find that lot of Sikhs, are against them. They speak against them, which is not true of इस्लाम और इवेंजलिस्ट। तो 4 फोर्सेस हैं इनमें। फिर दलित, अब दलित जो हैं वो दलित और मुस्लिम और इवेंजलिस्ट, ये में मिल के ये इंटरनल फोर्सेस हैं। अब करना क्या चाहिए? करना वही चाहिए जो अंग्रेज करते थे। वो जहाँ देखते थे कि ये 3 लोग इकट्ठे होके हमारे लिए खतरा बन गए हैं, तो उनको अलग अलग करके हैंडल करते थे। हर एक को अलग अलग करके हैंडल करना चाहिए। प्रैक्टिकली आई थिंक अवर गवर्नमेंट शुड डिस्करेज इंडियंस गोइंग टू यूएसए फॉर स्टडीज। दे शुड डिस्करेज। उन्हें कहें कि भैया जो पढ़ने जाएगा उसको फंडिंग बंद कर दें, उनको सपोर्ट ना करें, लोन ना दें। कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। और खासकर ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना। अगर जाना है तो 1 वे वीजा लेके जाओ, 1 वे ले जाओ। वापस आते हुए हम सोचेंगे कि आपको वापस आना है कि नहीं आना। अच्छा, दूसरा, जो इंडियंस हैं जो वहाँ रह के हमारे खिलाफ काम करते हैं, उनको वार्निंग दे दी जाए, स्टॉप योर एक्टिविटीज और योर सिटीजनशिप विल बी कैंसल्ड, और उनका पासपोर्ट नलिफाई कर दिया जाए। डोंट अलाउ देम टू कम बैक टू इंडिया। एक बार करके देखिए। अगर हिंदू तो इतना चरित्र की कल आप बात कर रहे थे ना, कैरेक्टर, ऐसा हमारा कैरेक्टर कमजोर हो चुका है, जरा सा उनके जेब पे हाथ डालोगे ना तो वो अपनी पूरी आवाज ही बदल लेंगे। ओके, नहीं जी, असी तो तुहाडी ही गल्लां कर रहे हैं, हम तो आपकी बातें कर रहे हैं। तो उनका पासपोर्ट कैंसिल करना चाहिए, उनको आने नहीं देना चाहिए। अगर इससे उनको वार्निंग देनी चाहिए, एंड देन दे शुड नॉट बी अलाउड टू कम। एंड ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
I understand, but they also cannot. After all, they also cannot make their money without the support of the government. It is the government that has to realize the danger, but as you are right, they don't. At present, they don't. उनको समझा लीजिए, उनको समझ नहीं आती. So some kind of जो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं ये हैं, उनको इन बातों को उजागर करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज क्यों कर रहे हैं, इनको करना चाहिए. जब प्रेशर थोड़ा गवर्नमेंट पे बनेगा धीरे धीरे, तो द इंडस्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड. तो इंडस्ट्रीज को तो ऐसे करना है. नाउ द इंटरनल फोर्सेस, आई थिंक द की, फर्स्ट ऑफ ऑल, take away every privilege that you have given to the Muslim community. Waqf board should be abolished completely. And the 1991 Act should be abolished. And it should be replaced by an act that we will restore the original condition of all the monuments of India, whether they are in ruins और दे आर इन हाफ रूइंस. ये दो एक्ट वक्फ के और इसके बिल्कुल हटा देने चाहिए. दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एनी वे, इन एनी केस दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वी शुड रिमूव दीज एक्ट्स. एंड थर्डली, जो हिंदूज की डिसेबिलिटीज हैं imposed by Nehru, for example the charitable trust act by which all our temples are governed by the government. Our money, अभी तिरुपति में जगन रेड्डी ने अपने फूफे को चेयरमैन बना दिया और वो क्रिश्चियन है. और जो वहां के लड्डू बनते हैं वो केरला का मैथ्यू है कोई जो बनाता है. अरे अब हिंदू लड्डू भी नहीं बना सकते, समझे ना आप सर. why permit this? You have to have a government. I think we have to give a strong message that we will not accept these things anymore, the Hindus. And the Hindus have started. For the first time, we have had demonstrations in London and in USA against the BBC by Hindus. And for the first time, the Hindus dragged out that gentleman who had torn the flag from the temple in London. And the police, British police, had hard time saving him. So they are slow to wake up, Hindus. Till they are kicked in their pants, they don't really realize that they are in danger. तो दे आर स्लोली वेकिंग अप. तो इनको हिंदूज की डिसेबिलिटीज जो हैं, एक ये एक्ट है और दूसरा आर्टिकल 30 और 30A, जिसमें आप अपने स्कूल नहीं चला सकते, आप अपने स्कूलों में धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते, पर उसी में लिखा हुआ है मुसलमान अपने धर्म ग्रंथ पढ़ा सकते हैं, सिख भी पढ़ा सकते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ा सकते हैं. Why have we accepted all these things so far, so long? Why have we accepted these things so long? So, no amount of facts, no amount of detailed arguments by Madhu ji, जिनको सब पता है, वो उनको आप बता के क्या करेंगे? वो सुनने वाले नहीं हैं. You have to take action, and action has to be very clear, even if it leads to some kind of a inter-societal violence. Doesn't matter. After all, Heraclitus in the 7th century BC, he said, war is the ultimate solution of all problems. अल्टीमेट सोल्यूशन वही होती है. पर अगर झगड़ा भी, तो झगड़ा हम तो नहीं करते. हम लोग तो हमारे यहाँ ठीक है, कोई बार झगड़ा हो रहा हो तो हमारे यहाँ हिंदू मदर लड़के बाहर मत जाना जो झगड़ा हो रहा है, बाहर मत जा. कावर्ड्स बनाते हैं, कावर्ड. हमारी लड़कियां पहलवान बन गई, ये बड़ी अच्छी बात है. हमारी लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया. सो मेरे ख्याल में द फ्यूचर, एंड आई एम ग्लैड that now even in the Air Force, the girls are being recruited to fly the fighter planes also. And Navy has also decided to include, because it appears that the Indian male has degenerated to a great extent. And the most active section of our society are our girls. But Hindus are a very ancient people. And we are the only people who successfully resisted Islam. Only people. Valiant Iran, Persia,
30 साल में डिफीटेड एंड कन्वर्टेड, पर बॉर्डर ऑफ इंडिया से दिल्ली आने में अरब इन्वेडर्स को 400 साल लगे, 400 years. Every inch was fought. So it is not that we will not fight. The only point is, when do we realize that we are in danger? राजीव जी ने एक बार कहा था, शत्रु बोध नहीं है, शत्रु बोध नहीं है, वो होएगा तभी। पर इसलिए थियरी छोड़ दीजिए, अब सर काम, इनका तो अपना काम है, ये बताते हैं, रिसर्च करके सब बताते हैं। हमको पता लगना चाहिए कि क्या खतरा है, हमें सोचना चाहिए कि करना क्या है, सरकार पे प्रेशर कैसे डालना है, और ये जो 4 मशीनरी के एलिमेंट्स हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करके क्या एक्शन लेना है, और ये जो 3 इंटरनल फोर्सेस हैं जो इनको सेपरेट करके, जैसे इवेंजलिज्म में आई डोंट अंडरस्टैंड, जो धर्म प्रोसेलिटाइज नहीं करता, हिंदूज डू नॉट प्रोसेलिटाइज, उनकी प्रोसेलिटाइजेशन क्यों अलाउड है? व्हेन वी डोंट प्रोसेलिटाइज, व्हाई शुड पीपल बी अलाउड टू चेंज आवर रिलीजन? इनफैक्ट आई वंस आस्क्ड द आर्च बिशप, एक 2000 की बात है, सन 2000 की, वी आर फॉर, वी रिस्पेक्ट आवर रिलीजन्स। आई गॉट अप एंड सेड, सर इफ यू रिस्पेक्ट माई रिलीजन, व्हाई डू यू वांट टू चेंज इट? क्यों बदलते हो मेरा धर्म? वो बदलते हैं। वो दे वे पंजाब, सर यू आर पॉइंटिंग आउट यस्टरडे, कि पंजाब में, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन आजकल पंजाब में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। खालिस्तानियों से ज़्यादा डेंजर पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन की है। तो वाई शुड इट बी बैंड? दुनिया बोलती रहे, आवर आर्मी शुड बिकम स्ट्रांग, आवर इकोनॉमी शुड बिकम स्ट्रांग, and we should ban these forces. There is no other way. कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, आर्टिकल, रिसर्च से काम नहीं होगा सर, अब एक्शन से ही होगा. If I hope the government is prepared to take note of these things. Thank you, sir.